मैरिजेस इतनी खराब हो रही हैं या उसमें लोग खुश नहीं हैं, क्या वो उसका एक रीजन ये है कि लड़कियां आज पढ़ गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं? मेन रीजन ये है कि गर्ल्स को हमने इंडिपेंडेंट बना दिया है, बॉयज को हमने इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। इंफिडेलिटी इज अ डिस्ट्रैक्शन। यही एक जगह है जहाँ से ईगो बूस्ट हो सकती है, या फिर एक्चुअली पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं है, या फिर अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना नहीं आता है। इनफिडेलिटी इटसेल्फ को विलेनिफाई नहीं करना चाहिए। इज इट अ गुड आइडिया कि हर कपल जो शादी करने से पहले एक प्री मैरिटल काउंसलिंग ले ले, एब्सोल्युटली, ताकि ऐसी सिचुएशन ही ना आए? आई 4 बारी 5 बारी बोल के पीछे हट जाएंगे, कभी ना कभी तो आपका पार्टनर सुनेगा, और फिर भी नहीं सुना है, देन वी नीड टू लुक एट आवर लाइफ। क्या मैं ऐसे ही जिंदगी जीना चाहती हूँ? Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to In My Opinion. Today we have somebody who's a psychologist who has been a psychological counselor for almost 15 years now. So very warm welcome, Prerna. Thank you so much. We have Prerna with us today, who is a psychoanalysis expert and who deals with the two very new, for me at least, types of techniques, which is psychodrama, and she also talked about expressive arts therapy. Yeah. So, Prerna, a very warm welcome. I know you're very busy and you found time for us today. Thank you so much. Uh, let's talk about you first. Yeah. So, how did you get interested in psychology and how did you become a counselor? I was interested in psychology since the very beginning. I'm one of those students who would sit on the bench in lunch break and observe everyone playing and noticing how groups are formed. I didn't know this was psychology. This was just an innate thing in me to observe people. And I think when I was in 10th grade, one of my seniors was studying psychology. I took her book. It was called Morgan and King, Introduction to Psychology. I left reading my books, my syllabus, and I was reading that one. And that got me even more interested, and I was very clear, even in my 10th grade, that I want to become a psychologist. So after that, it was just fighting for that, standing up for that in front of my parents, because they didn't understand what is psychology at that time. Yes. I'm talking about 2006 and, 4, those kind of years where psychology was still not popular. We were still talking about how it is going to become popular in the next 10 years, but तब तक नहीं था. तो एक दिन रात को मैं बोली, one day before my PMT exam, now it's called NEET, Yeah. that I'm not going to give the exam. आपने तो मुझे जानवरों का डॉक्टर बना देना अगर मैं गलती से क्लियर हो गया. Yeah. So I said कि no, I'm very clear that I want to go for psychology. And since then, I met the right people, the right kind of guidance. I met my mentor in one of the conferences, and that is how I landed up, learning about these techniques. Yeah, because it's very important and more so in today's world. जब सबको इतना stress है and everybody's running here and there and everybody wants to excel and do well, and taking care of your own mental health is becoming very important. और अब तो I think India has come of age and now people are seeking counseling, Absolutely. and therapy. So you were talking about off camera also, we talked about it. You were talking about expressive arts therapy. So what's that and how does it help people? So expressive, as the word expressive says, so we're not sick because we're ill or there is some problem with our mind. We have become sick when we're not able to express ourselves. We keep locking up things inside, and sometimes we don't find words to say it. And whom to say it to. And who to say it Yeah. to. Yes. So that is why expressive arts therapy helps you in expressing yourself through any medium of your choice. For example, photography, videography also. Some picture reminds you of sadness, and maybe that sadness is represented in a sunset. So you click a picture of sunset and you journal about it. And nobody has to know Or that. you paint or you draw. You paint, you draw, you do a drama about it, a theater about it, you write a poem about So it. that becomes cathartic for people? Very, very cathartic. And it leads to more awareness because your defenses are down. Otherwise, our defenses are always up. लोग क्या कहेंगे, या फिर मैंने ऐसी चीज अपने आप को एक्सेप्ट भी कर ली, क्योंकि हमारे डिफेंस हमें प्रोटेक्ट करते हैं. आई डोंट वांट टू नो सर्टेन थिंग्स, क्योंकि वो मेरे रिलेशनशिप खराब कर देंगे. हाँ जी, बिल्कुल. तो एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी के थ्रू आप सेफली अपनी उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट हर्टिंग एनीबडी और विदाउट ओपनिंग टू मच दैट यू नॉट रेडी टू ओपन येट.
क्योंकि थेरेपी के बारे में ये सबसे बड़ा मिथ है कि जाओ थेरेपिस्ट के पास और सब कुछ बोल दो वहां जाके, हाँ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्लाइंट्स फील कि नहीं सब कुछ बताना है, बट थेरेपी इज लाइक स्टेपिंग इनटू अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. दिस इज एन एग्जांपल आई ऑलवेज गिव इन माय फर्स्ट मीटिंग विद द क्लाइंट कि आपको मुझे सब कुछ नहीं बताना है जो आप नहीं या बताने के लिए जितने रेडी. कंफर्टेबल हो उतना बताओ. यस, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज लाइक अ स्ट्रीम. आप सोचिए आप साइंटिस्ट हैं और आपने एक नई रिवर डिस्कवर करी, and you want to test what kind of water it has, what kind of animals or microbes are living in it. या तो आप एक टेस्ट ट्यूब जितना पानी लेंगे और उसको बिल्कुल टेस्ट करेंगे, फिर भी आपको पता लग जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. You don't have to know the entire या river. या. Stream of consciousness is exactly like this. You even tell me that I like going for walks. It will tell me so much about you. Okay, okay. Yeah. And you were talking about another technique called psychodrama. What's that? So psychodrama is one of my favorite techniques, and I'm registered with the American Board of Examiners for psychodrama as well. And ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं to do therapy and advance it and bring it to the groups. तो इनका कहना है कि हम लोग wounded होते हैं because of our relationships and connections. Yes. तो थ्रू कनेक्शन ओनली वी शैल हील. अकेले जाके थेरेपी लेना कई बार इफेक्टिव नहीं होता है. इट इज नॉट लाइक यू फेल्ड एट थेरेपी. Yes. मे बी वी नीडेड टू ट्राई समथिंग एल्स, एंड ग्रुप थेरेपी इज रियली कमिंग अप. तो साइकोड्रामा जो टेक्निक है ये ग्रुप थेरेपी का टेक्निक है. Okay. तो वेयर अ ग्रुप इज देयर टू हेल्प यू आउट. उसके कुछ एलिमेंट्स इंडिविजुअल थेरेपी में भी यूज होते हैं, एंड उसमें आप अपनी साइकी को प्ले आउट करते हो. So it's like playing a role in a drama. Yes. So whatever the situation is that you're going through, you enact that situation using scarves, stuffed toys, and the normal things that are there, है ना? Yeah. उन चीजों को lay out करते हो, scene set करते हो, and then you step into that scene, and आप intellectualization से बाहर आ जाते हो. You get into the feeling mode. Yes, you step into your heart, you step into your gut, and आपको really पता लगता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे. And that is why this technique is one of the most powerful techniques out there. Plus the therapist there to always guide and hold. हाँ जी, थेरेपिस्ट को वहाँ पे डायरेक्टर बोलते हैं, जैसे मूवीज के डायरेक्टर होते हैं, एंड क्लाइंट को प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, एंड बाकी ग्रुप उस वक्त आपका ऑक्सिलरी बनता है टू हेल्प यू आउट. मान लीजिए The आप side cast. द साइड कास्ट, आपने किसी को कोई रोल देना, अपने फ्रेंड का रोल देना, तो वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स विल टेक द रोल ऑफ योर फ्रेंड. इस तरीके से बहुत रियलिस्टिक तरीके से यू रिजॉल्व योर So इश्यूज. I think therapy can be fun as well. एब्सोल्युटली. एज फन एज योर थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट इज, Yeah, उतना ही फन हो सकता that's है. great to know. So, there's so much to talk about. I think we can do endless conversations about mental health and about what people are going through. But like we have to limit it somewhere. And definitely we like to have you again on another podcast as well and many more podcasts. But आज हम एक जो बात करेंगे, that's more about relationships, specifically about when people enter into a permanent relationship of marriage, what goes on in that marriage and how people suffer and how counseling can help. So हम आज उसके बारे में बात करेंगे. And when I was reading about it, when we talked and like I invited you and I was going deeper into it, I saw that if you look at the statistics, India maybe is like India right now has much less number of divorces if you look at divorce rate. But the relationships going bad, I think, is much more than any other place. Because वो ज़्यादा बढ़ रहा है, where people are not happy in the relationships they are in. And particularly I am today talking about marriage, not about any other relationship. तो जो marriages इतनी खराब हो रही हैं या उसमें लोग खुश नहीं हैं, क्या वो उसका एक रीज़न ये है कि लड़कियां आज पढ़ गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? So many people talk about that कि पहले वो submissive थी. So is that the reason? Do you think that's the reason? आपने एक कीवर्ड कैच किया कि वो अदर गर्ल्स सबमिसिव थे, हाँ. है ना? सबमिसिव थी, एंड दैट इज व्हाई दे वर इजियर टू कंट्रोल. बट मेन रीजन ये नहीं है. मेन रीजन ये है कि गर्ल्स को हमने इंडिपेंडेंट बना दिया है, बिल्कुल. बॉयज को हमने इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है. Okay. So, That's a very new thought. जहाँ पे हमने लड़कियों को वी हैव taught them how to step outside, we have not taught the boys to step inward. Yes. अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी थॉट्स के साथ कैसे टच में आना है. बॉयज क्या करते हैं मोस्टली, द वे ऑफ ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट इज घर छोड़ के चले गए थोड़ी देर के लिए, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया. द हस्बैंड विल मे बी इवन पुट हिमसेल्फ इनटू हिज वर्क.
वर्कोहॉलिक बन जाएंगे, हम्म बट नेवर टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। हम्म इनफैक्ट कई बार लड़कियां अप्रिशिएट करती है जब उनको फीडबैक मिलता है अपने हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड से जेन्युइन। बट वो जो ये गुड बॉय सिंड्रोम है ना, एक तरीके से ये भी एक मैरिज के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है। नहीं तो लोग आपको बोलेंगे आपका हस्बैंड आपको मारता नहीं है, डांटता नहीं है, कुछ नहीं करता है, जो आप बोलते हो वैसा करता है, बट ओनर्स ऑफ द एंटायर रिलेशनशिप इज ऑन द गर्ल देन। हम्म वही सारे डिसीजंस ले रही है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, घर कैसे चलेगा, फिर वो अपनी जॉब भी मैनेज कर रही है। इट इज टू मच फॉर अ गर्ल टू कैरी। वो सबमिसिव हस्बैंड नहीं चाहिए था। अगर गर्ल सबमिसिव होना बंद हो गई है, वी डोंट वांट अ सबमिसिव हस्बैंड, वी वांट अ yes of रिफ्लेक्टिव course एंड इनवर्ड गोइंग हस्बैंड, कि दोनों अपना तालमेल दोबारा we से want to बिठा be सके। equal partners in marriage एब्सोल्युटली, yeah एब्सोल्युटली। तो ये तो क्योंकि थॉट ही बड़ी गलत है ना कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं इसलिए मैरिजेस खराब हो रही हैं जी, लड़कियों को तो हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट है एंड द इकोनॉमी आल्सो रिक्वायर्स दैट लाइक वो दैट इज अ वेरी रिग्रेसिव थॉट यस। हमें चलना तो इसके साथ है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं हम्म। दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो कैसे हम अचीव करेंगे और ये सोल्यूशन नहीं कि लड़कियां वापस सबमिसिव हो जाएं। वो तो दुनिया सॉल्यूशन नहीं आगे है बढ़ती है, वो तो पीछे नहीं solution जाती। बिल्कुल 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 सो मैरिजेस इसलिए भी क्या खराब होती हैं कि पर्सनालिटीज बड़ी क्लैशिंग है क्योंकि दो लोगों की शादी तो हो गई बट probably ग्रूविंग नहीं है because their personalities are like because you are a psychologist and you counsel people so much do you see that a lot कि काफी personalities different हैं एक दूसरे से पर्सनालिटीज डिफरेंट होना कभी प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ होना बिकॉज तो नहीं चाहिए जो कमी आप में है वो आपके पार्टनर पूरी कर सकते हैं। या एब्सोल्युटली बट अडेप्टेबिलिटी पुअर होना प्रॉब्लम है। हम्म किसी भी रिलेशनशिप का हम्म सक्सेस या फिर लाइफ में आपका हम्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन आप कितने अडेप्टेबल हैं। हम्म और अडेप्टेबिलिटी कम हो गई है। हम्म और अडेप्टेबिलिटी कम होके जगह किस चीज ने ले ली है? कैंसल कल्चर ने। मेरा ये नहीं मैच करता तो रिलेशनशिप तोड़ दो, हम्म मेरे थॉट्स नहीं मैच करते तो हम्म तोड़ दो। हम्म हम अपने थॉट्स के साथ बैठ नहीं रहे हैं कि सामने वाला जो कह रहा है शायद उसका भी कोई रीजन हो सकता है, उसकी अपब्रिंगिंग या उसका कोई पास्ट रीजन हो सकता है। वो हम बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे हैं। हम्म वी बिकमिंग वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मेरा तरीका बस सही तरीका है। तो हम देख बहुत ज्यादा रहे हैं, सुन बहुत कम रहे हैं। हम्म इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं एक हम्म दूसरे की। पर्सनालिटी तो मान लीजिए कोई एक्सट्रोवर्ट है, हस्बैंड इज एन एक्सट्रोवर्ट, वाइफ इज एन इंट्रोवर्ट, तो उल्टा वो तो उसके साथ रह के बेटर अपना मीडियम लेवल पे आ सकती है। एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन से मीडियम लेवल एक्सट्रोवर्जन पे आ सकती है, तो उसके लिए ग्रोथ है, एक्सपेंशन है। और शादी का रियल मतलब ही एक्सपेंशन ही है। हम्म जब ब्रह्मचार्य की बात होती थी पुराने जमाने में, 25 years they were years to reflect who you are, to form yourself। यस जब आप बन गए पूरा कंप्लीट हो गए, देन यू इनवाइट अनदर पर्सन इनटू योर लाइफ। हम्म और आप अपनी स्पेस को एक्सपैंड करते हो टू इंक्लूड द अदर पर्सन। यस एक्सपेंशन तो तभी हो सकती है अगर आप में अडेप्टेबिलिटी है और ओपननेस है। तो हम्म पर्सनालिटी क्लैश इज नॉट द प्रॉब्लम। ओके ओपननेस एंड अडेप्टेबिलिटी हम्म एंड द लैक ऑफ इट इज द प्रॉब्लम। So do you think if one knows the other person well, हम्म। जैसे हमारे ट्रेडिशनली तो अरेंज मैरिजेस होती थी जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं जानते थे या एक आधी बारी दो बारी मिले एंड शादी हो गई बिल्कुल। एंड टुडे इट्स टोटली ऑपोजिट पीपल meet multiple times for years they know each other and then they get married do you think this way of getting married can lead to more successful marriages या कोई फर्क नहीं पड़ता शादी के बाद It doesn't matter at all. What? Again, it relies हम्म on openness and हम्म adaptability। क्योंकि आप पूरा अपना चेकलिस्ट लेके बैठते हो आज की डेट में। हम्म सारे शादी.com पे या भारत मैट्रिमोनी वगैरह जैसी वेबसाइट्स पे डालते हैं कि हमें ये चाहिए। और ये सब मिलने के बाद भी आपकी बन नहीं रही नहीं अपने चल पार्टनर रहा के हाँ साथ। हाँ क्योंकि चेकलिस्ट का मैच करना या ना मैच करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम या वो एफर्मेशन नहीं है कि दिस मैरिज विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद दोनों इवॉल्व होते हैं, दोनों चेंज होते हैं। वो एक दूसरे के साथ तालमेल कैसा बिठा पाते हैं? जब पार्टनर चेंज हो रहा है, इट्स लाइक टैंगो डांस। मैरिज अगर आप बेस्ट अंडरस्टैंड करनी हो, पार्टनर आगे आ रहा है तो आप थोड़ा-सा पीछे चले जाओ और उसके लिए स्पेस क्रिएट कर लो। आप पीछे जा रहे हो तो दूसरा पार्टनर थोड़ा-सा आगे आ जाए। क्लैशेस तब है जब दोनों सेम टाइम पे गुस्सा कर रहे हैं। Yeah, but Prerna, sometimes it's happening. One person is going forward, and वो ही forward जा रहा है ना. The other person is okay. Like you say, it has to be
वाइस वर्सा. सो बहुत बारी मैरिजेस इसलिए फेल होती है ना, वन पर्सन इज गोइंग फॉरवर्ड, द अदर इज गोइंग बैक, एंड देन दैट सेम पर्सन इज गोइंग बैक एंड बैक एंड बैक, and एंड द they're अदर doing पर्सन कीप्स and they're कमिंग. doing it without the awareness of each other. यस. तो यानी वो आगे पीछे बढ़ रहे हैं पर सिर्फ अपने सेल्फ में अटके हुए हैं. दे आर नॉट अवेयर कि दे हैव अनदर पर्सन अलोंग विद हाँ, जो बंदा फॉरवर्ड ही आता जा रहा है, देम. उसको ये अवेयरनेस नहीं है कि दूसरा पीछे जा रहा है मेरे लिए, एक बार ही चला गया, 2 बार ही चला गया, एट हाउ मेनी टाइम्स वुड दैट पर्सन डू दैट? तो फिर दूसरे में भी फ्रस्ट्रेशन आती है, एंड और शायद ग्रैटिट्यूड इज द आंसर फॉर दैट, क्योंकि ग्रैटिट्यूड भी मिसिंग है. जब हम मैं ही मैं चल रहा है हाँ. हमारे में फिर ग्रैटिट्यूड की भी कमी हो हाँ. जाती है. तो व्हेन वी हैव ग्रैटिट्यूड फॉर अ पार्टनर, जो भी उसने किया है, और हम देखें कि नोबडी ओज अस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, नोबडी ओज अस एनीथिंग. इफ दे आर डूइंग एनीथिंग नाइस फॉर अस, हमें उसका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. बट वो फिर जिसमें नहीं है, हाउ टू नेविगेट दैट, हाउ टू डील विद दैट? इफ वन पार्टनर डजंट हैव दैट, डजंट केयर अबाउट द अदर पार्टनर्स फीलिंग्स, तो फिर व्हाट इज द वे आउट? हम रूल्स बना लेते हैं कई बारी ना अपने लिए, कि एक बारी बोलेंगे, 2 बारी बोलेंगे. आई वुड से क्योंकि आप अपने स्पोक्स पर्सन हैं, नोबडी इज एवर गोना स्पीक अप फॉर यू. स्पीक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, एंड मे बी लुक एट योर पार्टनर एज वेल कि उसको बात समझ कैसे आती है. इसको मैं अपनी थेरेपी में ना बोलती हूँ, चाबी पकड़ो सामने वाले की. एवरीबडी हैज अ की. ओके. For example, my key is respect. If my partner has to talk to me, if they talk to me with respect, मैं सारी बातें सुनूंगी, मैं क्रिटिसिज्म भी सुन लूंगी अपना, कोई दिक्कत नहीं है. Similarly, my partner's need is soft voice. आप रिस्पेक्टफुली बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, वो इतना फर्क नहीं पड़ता. आपकी आवाज सॉफ्ट रहनी चाहिए, बिकॉज लाउड वॉइस इज अ ट्रिगर फॉर हिम. तो मेरे को वही ध्यान देना. अब मुझे जो बात कहनी है, हम कहने भी चाहते हैं अपनी बात और अपने तरीके से कहना चाहते हैं, वहां पे दिक्कत हो जाती है. Sometimes you need to step back and look at the situation from a little distance. And psychodrama, as I said, helps you with that. Scene वहाँ set हो गया है. अब जब बाहर आके निकल के देखते हैं तो आपको realize होता है कि कौन से parts आप miss कर रहे थे उस पूरी story में. तो if you will have to find out why your partner is not listening. So it's more about caring, like you step back and like Yes. give it some amount of care and thought कि क्या हो रहा है, Yeah. why the other person is not listening to क्योंकि you. थेरेपी में सोल्यूशन तो नहीं दे नहीं सकता, दे सकता. आप जी रहे हैं अपनी लाइफ. बिल्कुल तो बिल्कुल. एक थेरेपिस्ट आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए. वो गलत भी है अगर हम बताते हैं हाँ. तो. हम बता सकते हैं ये ट्राई करके देख लो, वो ट्राई करके देख लो ज्यादा, बट इट कांट बी अ प्रिस्क्रिप्टिव थिंग. वो आपने ही देखना है. तो एक थेरेपी एक तरीका है कि जहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाता है कि वहां पे क्या चल रहा है. मे बी द पार्टनर इज ओवर अटैच टू देयर मदर, मे बी यू आर ओवर अटैच टू योर मदर, कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो उनको ढंग से. तो इट इज नॉट एज सिंपल एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट. वी ऑल्सो नीड टू स्टडी कहाँ से वो डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट आ रही है. So you talked about families. Do you think in India that is also a contributing factor because we live with our parents, and do you think in-laws are contributing or the family members are contributing also to marriages going sour? बिल्कुल, क्योंकि फैमिलीज उस स्पेस पे इवॉल्व नहीं हो रही है जिसमें नई जनरेशन इवॉल्व हो रही है. हर एक चीज के अपने अपने मीनिंग्स हैं. नई ब्राइड आती है, शी वांट्स टू वेयर सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स, इन लॉज अलाउ नहीं करते हैं. तो धीरे धीरे करके उसका पूरी आइडेंटिटी बदलनी शुरू होती है, एंड देन द डॉटर इन लॉ बिकम्स बिटर. और वो फिर क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करती है फिर लड़की भी. वो अपनी फीलिंग्स को डिस्प्लेस कर देगी अपने हस्बैंड के ऊपर. तुम भी मत जाओ, तुम भी अपने दोस्तों से मत मिलो. अगर मैं नहीं मिल सकती, मैं तुम्हारे बिना कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो तुम भी नहीं जाओगे. अगर मैं इतने बजे से बाहर नहीं जा सकती, तो आप भी उतने बजे से बाहर नहीं जाओगे. तो ये कंपटीशन चल पड़ता है फिर. बट इन लॉज को अगर वो थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आज की डेट में सबको अपनी अपनी समझ है, और शायद ये वाली जनरेशन इतना सुनना भी नहीं चाहती, तो थोड़ा सा अगर वो स्टेप बैक ले सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गाइडेंस देना उनका काम है, गाइड कर दे, एंड देन इट इज अप टू द अदर पर्सन कि वो लोग एडवाइस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं. क्योंकि बड़ों को गिल्ट आ जाता है कि अगर हमने समझाया नहीं तो इनसे पता नहीं कौन सी गलती हो जाएगी. बट लाइफ बहुत स्टर्डी है, लाइफ बहुत बहुत ज्यादा रेजिलिएंट है. ह्यूमंस भी बहुत रेजिलिएंट हैं. हम कितने ट्रॉमास, कलेक्टिव ट्रॉमास लाइक अर्थक्वेक, सुनामी से सर्वाइव कर लेते हैं. जापान इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. हम जितना अपने आप को फ्रेजाइल समझेंगे, लाइफ को जितना फ्रेजाइल समझेंगे, उतनी दिक्कत आएगी. तो बड़े हम लोगों को इतना नई जनरेशन को फ्रेजाइल ना समझे, अपना पॉइंट समझा दें, सो दैट दे आर नॉट गिल्टी कि हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ समझाया नहीं. एंड मे बी
the other generation can also try and understand कि उनका क्या मतलब रहा होएगा. Because families can play a very positive role also. Like they are the support system. Absolutely. And so when you counsel, like let's say a couple comes to you with when they are having some issues with each other, तो आप क्या बाकी family members को भी counsel करते हो? Like can you or do you or have you found any occasion जहाँ आप in-laws को भी counsel कर रहे हो? Absolutely. अच्छा, Invitation रहती है हाँ, कि अगर वो लोग भी आ जाएँ तो हम्म, बढ़िया रहेगा. तो then that couple therapy becomes family counseling. हम्म, Family counseling family के साथ होती है. Individually भी बात yeah, करी जाती है उनमें yeah, सबसे, and then सबको साथ family, बिठा के भी बात करी family जाती है. also. एक मैंने और बहुत ज़्यादा लाइक हमारे आस-पास देखा है या फ्रेंड्स में या इधर-उधर that sometimes lack of communication is also a very big problem. I have seen like people sometimes they are in a habit of yelling हम्म. या ऊंची आवाज में ही बात करना या वैसे ही कम्युनिकेशन है ही नहीं. So I think effective communication is also very important. इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पहले तो ट्रस्ट के साथ बैठना पड़ेगा. हम्म, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन नॉट हैपन इफ देयर इज अ ट्रस्ट का ब्रेकडाउन बिटवीन टू पीपल. हम्म, जब हम ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को तो इट बिकम्स इजी टू लिसन कि अब बेसलाइन सेट है. हम्म, दे डोंट मीन बैड. हम्म, They don't want to hurt us. हम्म, Now the what is the matter or context of things that is being said. हम्म, तो उसके बाद बात करना आसान हो जाता है. पुअर कम्युनिकेशन डिफेंसिव कम्युनिकेशन या ऑफेंसिव कम्युनिकेशन है या पावर बीच में बहुत रोल प्ले कर रहा हाँ, है. या वन नीड्स टू फील पावरफुल तो दूसरे पे चिल्ला लो. हाँ, और अपनी गलती ना मानना, हाँ, क्रिटिसिज्म के साथ हम्म, रिलेशनशिप. हम्म, तो उसके बहुत ब्रेकडाउन्स करने पड़ते हैं. कम्युनिकेशन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? वो क्रिटिसिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है या पावरलेसनेस के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से हो रहा है. एंड पहले उन चीजों को बिल्ड किया जाता है, हम्म, तब जाके आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर और क्रिएटिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्पैक्ट करते हैं. मेरे पास एक कपल आता था हम्म, जो कि आपस में ऐसे बात नहीं कर पाते थे आमने सामने बैठ के. इट वुड ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड टू अ फाइट. तो इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर उन्होंने बात चैट पे करनी शुरू कर दी एंड इट वर्कड आउट फॉर देम. हम्म, तो कई बार क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी देने पड़ते हैं कि वो स्टबर्न ना हो उस चीज के बारे में कि कम्युनिकेशन होनी है तो ऐसी ही होनी है, बैठ के ही होनी है. हम्म, हो सकता है द वाइफ बिलीव्स इन सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. द हस्बैंड प्रेफर्स टू वॉक एंड टॉक अबाउट इट. एंड मैन आर सॉर्ट ऑफ लाइक दैट कि उनको बात करते हुए आपकी बिजनेस डील्स इतनी सारी गोल्फ खेलते हुए या कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए होती है बिकॉज दे फील बेटर व्हेन द मूवमेंट इज देयर. बट कितने कपल्स है कि जो वॉक के लिए जाते हैं और सॉल्यूशंस निकालते हैं. आप ट्रस्ट की बात कर रहे थे. ट्रस्ट तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है ही है किसी भी रिलेशनशिप का. तो अगर वो ट्रस्ट नहीं है, दिस लैक ऑफ ट्रस्ट, हाउ लाइक डू यू हैव टेक्निक्स टू बिल्ड दैट ट्रस्ट आल्सो? यस. सो अच्छा, बोथ पास्ट से रिलेटेड साइकोएनालिसिस भी यूज होता है कि हम्म, पास्ट में ट्रस्ट कभी था भी सही हाँ, या कभी नहीं था और किसी और के साथ ट्रस्ट है. हम्म, हो सकता है कि वन ऑफ द पार्टनर्स डजंट ट्रस्ट एनीवन. anybody, yeah, वो पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रस्ट हाँ, से देखते हैं. हाँ, so they have their own childhood traumas or something else. यस, यस. एंड हो सकता है कि ट्रस्ट रीसेंट चीज़ों की वजह से ब्रेक डाउन हुआ है. अगर रीसेंट चीज़ों की वजह से ब्रेक डाउन हुआ है, इट इज़ वेरी ईज़ी टू बिल्ड इट. हम्म, एंड ऑल्सो री-इंटरप्रेटिंग द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो थेरेपिस्ट का रोल ये भी रहता है कि दोबारा से हम री-इंटरप्रेट करते हैं कि जब आपकी वाइफ ऐसा कहती हैं, तब उनका मतलब ये होता है. जब वो आवाज़ ऊँची करती है, शी इज़ नॉट डूइंग इट बिकॉज़ शी इज़ वांटिंग टू कंट्रोल यू और ओवरपावर यू. शी इज़ डूइंग इट बिकॉज़ शी इज़ फीलिंग अनहर्ड. हम्म. तो कैन यू टेल हर व्हेनेवर शी स्टार्ट्स शाउटिंग, क्या आप उनको बोल सकते हैं मैं सुन रहा हूँ, आप चिल्लाइए मत. Do people follow this advice? सम ऑफ करते इट हैं? करते हैं क्योंकि हिट एंड ट्रायल है. हम्म, बहुत बारी कोशिश करनी पड़ेगी. आइडिया इज टू नॉट गिव अप ऑन द प्रोसेस. yeah. ना शादी ऐसी चीज है जिसके ऊपर गिव अप किया जाए. हो ही गई है तो थोड़ी कोशिश कर लीजिए. बिकॉज अगर हमें लगता है डिवोर्स के बाद बहुत लाइफ इज गोना बी जिंगा लाला, Yeah, yeah, नहीं of होती है. course. तो ये दोनों पार्टनर्स विलिंग हो तभी है ना एब्सोल्युटली ये वो हो प्रोमाइड सकता है. है. लाइक अगर both want to work at it. बोथ हैव टू वांट इट. दोनों की मोटिवेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि वन पर्सन इज 80% मोटिवेटेड, अनदर पर्सन इज 50% मोटिवेटेड. Yes, बट सम मोटिवेशन इज has to be there. अगर वन पर्सन इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस वर्क, फिर तो काइंडनेस वुड बी टू लेट दैट पर्सन गो. जो ट्रस्ट की बात है, वो दो चीज़ों से ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा खराब होता है. वील टॉक अबाउट बोथ एंड आई विल सीक योर ओपिनियन अबाउट बोथ. वन इज इनफिdelity. व्हेन दैट हैपेंस इन अ मैरिज तो फिर तो ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है. और देन वन पार्टनर फील्स चीटेड बिकॉज इफ दे एनकाउंटर infidelity in a marriage.
So what would be your advice as a psychologist? How should the partner deal with infidelity? What is the way out? I have a different advice for both the partners. Hmm. The one who experiences infidelity, कि जिनके पार्टनर ने करी है, हाँ. तो उनको पहली बात अपने आप को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. But that happens. That happens. That person's confidence gets hit. वो सबसे पहले अपने वर्थ पे जाता है हाँ. कि मैंने क्या क्या गलत बिल्कुल, किया, शायद मैंने बिल्कुल. अपना ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल. आई लेट माई बॉडी गो और हाँ. व्हाटसोएवर. हाँ. तो वो नहीं करना है. दैट इज व्हाई दे नीड टू रिमाइंड देमसेल्व्स हु दे आर. एक बारी उनको ऐसे फ्रेंड्स के साथ सराउंड करना चाहिए जो कि याद दिला सकें कि वो उनका वर्थ कहाँ से आता है. क्योंकि कई बारी पार्टनर बहुत हॉरेबल होते हैं और फिर भी उनके पार्टनर्स उनके ऊपर चीट नहीं करते. Absolutely. अगर किसी का अच्छा होना या बुरा हाँ, होना हाँ, या हाँ. वर्दी या अनवर्दी होना was a criteria, then Yeah, तो no cheating would happen. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. एब्सोल्युटली. बट उस सिचुएशन में जो होता है उसको शायद वो बात समझ नहीं ना आती. क्योंकि ब्लेम करने के लिए कुछ चाहिए. हाँ, हाँ. एंड सबसे इजीएस्ट पर्सन टू ब्लेम एट दैट टाइम इज योरसेल्फ. Yourself. बच्चे भी यही करते हैं. जब पेरेंट्स आपस में फाइट करते हैं, बच्चा पहले तो ये सोचता है कि अच्छा मेरी वजह से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से हमारा जो सेल्फ है सिर्फ अपने ऊपर होता है. तो ये टेंडेंसी होती है घूम फिर के अपने ऊपर आने की कि मेरी गलती रही होगी. एक तरह से लगता है वी आर बीइंग वेरी ग्रैंड एंड हम्बल अबाउट इट या. कि आई एम टेकिंग द ओनरशिप. नो, हाँ. दिस इज नॉट टेकिंग इन ओनरशिप. आप जब तक अपनी अच्छाइयों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं, तब तक आपकी बुराइयों के बारे में बात करने की कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पहले बेस ही नहीं है आपका. हाँ. तो पहले हम एक्नॉलेज कर लें, आई हैव बीन काइंड, आई हैव बीन ब्यूटीफुल, आई हैव बीन वेरी केयरिंग. हाँ, उसके बावजूद ये हो सकता है मैं चिल्लाती हूँ एंड आई मेक दिस पर्सन फील स्मॉल, तो आप तब एड्रेस कर सकते हो. बट अगर सीधा बुराइयों पे आ गए अपनी, तो हम बिखर जाएंगे. वो सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम को. बट प्रेरणा, डू यू थिंक कि अगर कोई ये समझ भी ले, चलो अपनी अच्छाइयाँ भी उसने समझ ली और फिर कोई एक दो बुराइयाँ भी उसको याद आ गई एंड वो सोचते बंदा सोचे कि ओके नाउ आई विल करेक्ट माई सेल्फ, वट एवर इज रॉन्ग विद मी आई विल चेंज दैट, कैन दैट लीड टू हैप्पीनेस जब कोई दूसरे ने इनफिडेलिटी की है या कंटिन्यू कर रहा है उसको करने के लिए? Because that cannot be the cause for infidelity. इट विल डेफिनेटली लीड टू एक्सपेंशन, डेफिनेटली. क्योंकि या तो अब आपका वजूद पूरा का पूरा आपके पार्टनर से आ रहा था, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको प्रूव कर दे कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ कि तुम्हारा वजूद मेरे से आए, तो भी आपकी एक्सपेंशन हुई है. बट मेरा अकॉर्डिंग टू द अदर पार्टनर जिसने इनफिडेलिटी की है, हाँ. मेरा वहां से भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनफिडेलिटी इटसेल्फ को विलेनिफाई नहीं करना चाहिए. ओके. हमारी सोसाइटी करती है. हाँ. बट फिर तो थेरेपिस्ट भी कर ले. हम तो हाँ. सोसाइटी का ही रिप्रेजेंटेशन है ना, Absolutely. पर हम लोग नहीं करते हैं. हाँ. क्योंकि पहली बात तो इनफिडेलिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ अंडरलाइंग प्रॉब्लम. अगेन इट कैन बी अबाउट पावर, इट कैन बी अबाउट द नंबर गेम. मैंने कितने लोगों के साथ किया है, कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, तो नंबर गेम को एड्रेस करना कि उनकी ईगो बूस्ट कहीं और से नहीं हो रही है. यही एक जगह है जहां से ईगो बूस्ट हो सकती है. या फिर एक्चुअली पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं है, या फिर अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना नहीं आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता लगेगा इनफिडेलिटी इज अ डिस्ट्रैक्शन. ज्यादातर लोग अपनी आप को प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो अपने अंदर की प्रॉब्लम से या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वंस दे अंडरस्टैंड कि कब तक कर सकते हैं, कि फाइनली तो आपका फैमिली ने साथ देना है. अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, आपके बच्चों ने आपका साथ देना है. आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो ही आपके वाइफ या आपके हस्बैंड ने आपका साथ देना है, राइट? अगर इन्हीं लोगों ने साथ देना है तो व्हाई नॉट वर्क ऑन दिस. आई कैन प्ले दिस गेम. तो जनरली हम ना पिक्चर दिखाते हैं उनको, विजुअलाइज करवाते हैं कि ठीक है फॉर द नेक्स्ट 10 years यू स्टिल डूइंग दिस, एडल्ट्री कर रहे हो आप. अगले 20 years तक कर रहे हो, जब तक आपका शरीर है, जब तक आपके पास पैसा है, तब तक कर रहे हो. आफ्टर 20-30 years आप क्या करोगे? यहीं पे आना पड़ेगा. तो माइट एज वेल वर्क ऑन दिस. और थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करना ज़रूरी है. एक बारी लोगों को समझ आ जाए ना कि हाउ मच एनर्जी वी एक्सचेंज विद पीपल, उसके बाद कोई ऐसे काम नहीं करता है, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड कि वेदर आई वांट माय कर्मा एंड माय एनर्जी टू बी एक्सचेंज विद सच अ पर्सन और नॉट. या. एंड व्हेन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड, है ना, एक मैरिज में बच्चे भी हैं, देन इट बिकम्स ऑल द मोर अनफॉर्चुनेट एब्सोल्युटली. बिकॉज द चिल्ड्रन आल्सो गेट इन्वॉल्व्ड इन इट. या उनको पता तो चलता है, असर तो होता है. सो व्हाट्स द बेस्ट वे आउट फॉर बोथ द पार्टनर्स, जो इनफिडेलिटी कर रहा है उसके लिए भी और जो सह रहा है उसके लिए भी? लाइक व्हाट वुड यू एडवाइस इफ सम कपल कम्स टू यू और वन पर्सन कम्स टू यू, बिकॉज प्रोबेबली द अदर इज नॉट गोइंग टू कम. जो इनफिडेलिटी कर रहा है हो सकता है वो ना आए.
द कीवर्ड इज दिस ओनली कि उसको मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइंग प्रॉब्लम समझना और उसको विलेनिफाई नहीं करना, ओके। क्योंकि डैमेज तो इन्हीं का ही हुआ है, जिसने करी है उसका बहुत लेवल्स पे डैमेज हुआ है, सटल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, क्योंकि डुअलिटी क्रिएट हो जाती है, माइंड बहुत कंफ्यूज होता है कि अच्छा अब हमारा पार्टनर कौन है, ये हमारा पार्टनर है कि हाँ। वो हमारा पार्टनर है। इनफैक्ट इनफिडिलिटी में जिसके साथ आप चीटिंग करते हैं वो आपका मेन पार्टनर बन जाता है, प्राइमरी पार्टनर, एंड व्हेन यू engage physically with your legal partner, आपको लगता है आप उसके ऊपर चीट कर रहे हो, माइंड इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है इस चीज में। तो पहली बात तो वो सिचुएशन हुई है। बच्चों के सामने भी अगर हम इनफिनिटी को विलेनिफाई करेंगे ना तो उनके अंदर डर बैठ जाता है, लाइक देयर सो मेनी यंग एडल्ट्स हु कम टू मी एंड दे से कि माय मदर चीटेड और माय फादर चीटेड, एंड उसकी वजह से मुझे लगता है इवन आई ऑलवेज एंड अप चीटिंग ऑन माय पार्टनर। वो ऐसी बातें बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमने उसको एक डीमन सा बना दिया है कमरे में, विच कांट बी डेल्ट विद। बट अगर आप उसको एक सोर्स ऑफ प्रॉब्लम बनाएंगे कि वो प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो रही है वहां पे, देन द चाइल्ड कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट, नहीं मैं अपनी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करता हूँ, मैं थेरेपी भी लेता हूँ और मैं डीपली सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी हूँ, मैं कम्युनिकेटिव भी हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो आई विल नॉट चीट ऑन माई पार्टनर। या ऑफ कोर्स। एंड जो दूसरा इशू है जो ट्रस्ट को ब्रेक करता है काफी ज्यादा, वो फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, जी, दैट मनी इज कंट्रोल्ड बाय समटाइम्स वन पार्टनर, है ना, या ऐसा कुछ, मनी का जो डिसीजंस हैं दोज आर नॉट इक्वली बिटवीन द टू, तो उसके साथ भी काफी ट्रस्ट ब्रेक होता है। बिल्कुल। सो हाउ टू डील विद दैट? सी दे नीड टू अंडरस्टैंड उनका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा चाहते हैं। मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, दिस आई एम नॉट सेइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, बट 3 तरह का पैसा होता है एक शादी में, मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा और हमारा पैसा। मेरा, मैं मेरे वाले के साथ क्या करते हो ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाएगा, तुम्हारा, तुम उसके साथ क्या करते हो कुछ नहीं बोला जाएगा, बट जो हमारा पैसा है जिसमें लार्जर चंक ऑफ मनी एक साथ आना चाहिए, एटलीस्ट 70% टू 80% ऑफ बोथ ऑफ देयर इनकम, तो वो डिसीजंस लेने के लिए होता है और वो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं कि कहाँ पे हमने कार लेनी है, घर लेना है, ये मेरा मानना है। पर देन कुछ पुरानी फैमिलीज है, उनका ये भी मानना होता है कि ये तुम्हारा मेरा क्या है, सब कुछ हमारा आ रहा है। है। कंट्रोल वहां पे आता है कि जब मैं स्पेंड कर रहा हूँ तब मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, जब आप स्पेंड कर रही हैं तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। बट कुछ खर्चे होते हैं जो जेंडर बेस्ड होते हैं, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शायद हमें एज वुमेन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई डज द हस्बैंड वांट टू बाय अ बाइक एट द एज ऑफ 45, या और यही शायद मेल पर्सन को नहीं समझ आएगा कि 10,000 के कॉस्मेटिक्स क्यों लेने हैं इसने, या ऑफ कोर्स। राइट? तो इसीलिए देयर हैज टू बी सम प्ले मनी व्हिच इज अलॉटेड टू बोथ द पीपल, जितना भी आप लोगों की क्षमता है, रेस्ट मनी शुड बी अकाउंटेड फॉर बाय बोथ द पीपल। सो इट मीन्स अगर वो मैच्योर पार्टनर्स हैं, दे विल सिट डाउन एंड डिसाइड कि इतना इतना, है यस, ना, एंड देन रेस्ट ऑफ द मनी लेट्स यूज और टुगेदर। जितना हम ट्रांसपेरेंट होंगे मनी के बारे में, उतना देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी वुंड वी वर्क ऑन इन थेरेपी, कि हमारे घर में पैसा क्यों नहीं आ रहा है या स्पेंड क्यों नहीं हो पा रहा है, एंड रिलेशनशिप विद अर्निंग एंड स्पेंडिंग, उसके ऊपर हम काफी काम करते हैं। तो जब हम ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं दोनों पार्टनर्स आपस में रिगार्डिंग मनी स्पेंडिंग, उससे इनफैक्ट मनी वुंड्स भी हील होता है, बिकॉज यू आर नॉट कैरिंग शेम अबाउट इट। या एक I've seen a lot of people also like their marriages crumbling जब लाइफ ट्रांजिशंस होती हैं, या तो बेबी हो गया तो कई बारी वुमन फील्स के सारा मेरे पे ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या लेट्स से दे वांट टू माइग्रेट टू अनदर कंट्री, या एक पार्टनर चाहता है दूसरा नहीं चाहता, या लोकेशन, जॉब चेंज। सो जब भी ऐसी लाइफ ट्रांजिशंस आती हैं, देन ऑल्सो लाइक बिकॉज दे आर टू इंडिविजुअल्स, they are going to clash. Maybe one wants one thing, the other wants something else. So how to navigate that? विल हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज जब भी आएगा दोनों को ही चेंज होना पड़ेगा, एक पार्टनर नहीं चेंज हो सकता। But maybe one is more dominating कि यही करना है, या बच्चा हुआ है तो औरत को आमतौर पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है that you have to take care of the baby, you give up your career. मैंने जैसा शुरू में बोला था, चाबी, we need to find out who your partner listens to, if they're not listening to, and get that person involved and get them to a baseline level जहाँ पे हम एक और न्यूट्रल पर्सन से बात कर सके और थेरेपी ले सके। गिव अप करना इज नॉट, या फिर सिंपली सेटल डाउन कि ये तो डोमिनेटिंग है, इसकी ही चलानी है और मैं पैसिव Always giving up, पार्टनर बन जाऊं, नहीं, पैसिविटी इज नॉट द थिंग। कॉन्फ्लिक्ट
होगा, ज़रूरी होगा, हम्म कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यानी कि लोग बदल रहे हैं, हम्म पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट से डरना नहीं है हमें। हम्म अपनी बात कहते रहना है, आराम से कहते रहना है और कह के छोड़ देनी है। कई बारी हम एज़ वुमेन गलती ये कर बैठते हैं कि ना छोड़ते नहीं है बात को। नेगिंग नैगिंग वो बन जाता है, हम इरादा नहीं होता हाँ नैग करने ऑफ का, कोर्स तो वो बोलते रहेंगे जब तक वो बात इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हम्म इंट्रोड्यूस द आइडिया, लेट द अदर पर्सन थिंक अबाउट इट। 4 बारी, 5 बारी बोल के पीछे हट जाएँगे, क कभी ना कभी तो आपका पार्टनर सुनेगा और फिर भी नहीं सुना है, फिर हम चाबी ढूँढेंगे, हमें चाबी भी नहीं मिल रही है, देन वी नीड टू लुक एट आवर लाइफ। फिर वही स्टेप बैक करके कि क्या मैं ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ? हम्म तो तब हमें डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बट फर्स्ट वी हैव टू ट्राई एवरीथिंग दैट इज़ आउट देयर। लेट्स से somebody has a small baby और वो औरत को माना जा रहा है कि यही केयर करे तो you are saying like if we want to give a toolkit to the audience कि वो बैठकर बात करें पहले तो अपने पार्टनर से हुँ, that let's talk about how we are going to हुँ, navigate this situation when we have a small baby हुँ, and both of us have careers बिल्कुल। तो इस पे बात करें क्योंकि प्रेमाइस ये है कि अगर वो दोनों के करियर्स हैं, तो कुछ तो पढ़े लिखे हैं, हम्म तो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स शेयर कर सकते हैं, कुछ हम वीडियोज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द फादर नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड विद द चाइल्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फादर। जैसे रोल ऑफ द फादर इज़ स्ट्रेंथ हम्म एंड इमोशनल रेगुलेशन। हम्म मदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर सकती बच्चे का, क्योंकि मदर एम्पैथाइज़ कर रही है बच्चे के साथ। हम्म वो बच्चा जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसकी मिज़री को डबल ट्रिपल वे में फ़ील कर रही है। because she is also feeling it हाँ। हाँ क्योंकि बच्चे का दर्द वो नहीं देखा हाँ जाता माँ हाँ से, हाँ तो वो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। फादर एम्पैथाइज़ नहीं कर रहा है, फादर एक स्टेबल पहाड़, पेड़ की तरह हो सकता है, जो वो छाया दे बच्चे को कि फाइन यू आर क्राइंग, आई विल सिट विद यू, वी विल क्राई, हम्म वी विल नेविगेट दिस। तो जब वो फादर को अपना रोल समझ आएगा कि बच्चे का बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। हम्म अगर हम ड्यूटी बेस से बात करेंगे, तुमको भी देखना चाहिए, मैं कितना कर लूँ, ऐसे बात करेंगे, नहीं समझ आएगी। हम्म बट अगर हम उनको रीज़न देंगे, हम्म चाहे वो रीज़न ये हो कि मैं थक जाती हूँ और मैं हाँ इसलिए थक जाती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे के सारे इमोशंस फ़ील होते हैं। हम्म और अगर हम उनको इम्पोर्टेंस फ़ील कराएँगे कि फ़ादर का रोल ये है, हाँ मोस्ट लॉजिकल पीपल अनलेस देयर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग विद देयर माइंड एंड देयर ओन अपब्रिंगिंग, तब जाके कोई बहुत सेल्फिश होगा। नहीं तो बच्चे एक्चुअली अगर फिगर्स माँगे 20 मिनट्स फ्रॉम अ फादर दे नीड एंड ओनली इन द प्ले फॉर्म। ये भी नहीं है बैठ के पढ़ाओ, कुछ करो। हम्म आजकल सब कुछ आउटसोर्स हो गया है, हम्म ट्यूशन्स आउटसोर्स हो गई हैं। तो अगर एक फादर बोलता है मैं दिन में 20 मिनट भी नहीं दे सकता, देन ही नीड्स टू सी yeah कि of course व्हाई इज़ इवन ही अ फादर? so if we sort of break it down and summarize it whatever we have talked about the key I think is communication right यस, बात करना अपनी जो आप फील कर रहे हो वो कन्वे करना यस। and do you think counseling also helps a lot एब्सोल्युटली, क्योंकि एक न्यूट्रल पर्सन बैठा है। कई बारी लोग फैमिली में बोल देते हैं मैंने अपने बच्चे की काउंसलिंग करी, मैंने अपने फ्रेंड की काउंसलिंग करी। नहीं, आपने काउंसलिंग नहीं करी हम्म क्योंकि आप बीच में थे। आप उस सिचुएशन का पार्ट हो। हम्म काउंसलिंग और थेरेपी का प्रेमाइस यही है दैट यू आर आउट ऑफ द सिचुएशन। you're not feeling Today, if I want to counsel my parents, I can't do it. mm. I'm not allowed to do it ethically and I should not be doing it. Mm. क्योंकि मैं ही समझाने वाली हूँ और मैं ही बताने वाली हूँ और मैं भी विक्टिम हूँ। हाँ तो उसमें रोल सारे मिक्स हो जाएँगे, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। एंड दैट इज़ व्हाई यू नीड अ प्रोफेशनल जो ऑब्जेक्टिव हो सके और न्यूट्रल हो सके और उसका कोई मतलब ना हो, अपना कोई गेन ना हो किसी की साइड लेने में। so is it a good idea कि हर कपल जो शादी करने से पहले एक प्री मैरिटल काउंसलिंग ले ले एब्सोल्युटली ताकि ऐसी सिचुएशन ही ना आए आएँगी। आएँगी, बट प्री मैरिटल से आप आधी प्रॉब्लम्स जो शादी के पहले 1 साल में आती हैं, उनको आप रिज़ॉल्व कर सकते हो। क्योंकि यू कैन बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर गोइंग, हाउ यू आर लिविंग, थोड़ा-सा आप आपस में बातें कर चुके होते हो कि कैसे-कैसे क्या करना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आनी तो लाज़मी है, लाइफ़ है तो प्रॉब्लम्स आएँगी, बट हमें अपनी क्षमता भी डेवलप करनी है उन प्रॉब्लम्स को yes डील करने की। yeah एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग हो या मैरिटल काउंसलिंग हो, वो आपकी क्षमता इंक्रीज़ करते हैं। but like counseling can help in strengthening Absolutely. the And marriage. one more thing I would like to say since we are talking Yeah. about it, please feel free to change your counselors if they're not working for you। ये नहीं कि एक जगह पहुंच गए तो वहीं पे ही रहना है। नहीं मैच किया, नहीं दोनों का ट्रस्ट बना, ज़रूरी नहीं है they have to force themselves to be there। अगर थेरेपी के लिए भी अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है, वो चीज़ इतना बेनिफिट नहीं दे पाएगी। Find a person you both click with, you both find neutral, and तब तक बदलते रहिए जब तक सही बंदा नहीं मिल जाता। Yes. Thank you so much, Prerna. And we'll like to invite you again and again because there are so many things we need to talk about.
But thanks a lot for today. Thank you so और much. जी, अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैरिज एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एंड इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आवर सोसाइटी। इसको अच्छा रखना, इसको चलाना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टनर्स पे है। एंड इफ़ यू नीड दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम व्हिच बोथ ऑफ यू कैन नॉट सॉल्व, सीक the help of a counselor. It makes sense and it's the right thing to do. Thank you so much for watching, and we'll come back with another conversation.